Okay, so good afternoon, students. Good afternoon, sir. Okay, so today I will be showing you one experiment of your practical subject. So till now we have all gone through this theory paper of principles of control system. So today I will be, you can say, I will be giving you a lecture or I will show you an experiment on the control system laboratory subject. Okay, so these are lab class actually. So let me go through the syllabus first of all. I think all of you have already gone through the syllabus from the university, but still I will just explain a few things to you in brief. Okay, so this is the control system principles of control system laboratory. Okay, so these are the experiments which are there. So the reason why actually in the last week only I had planned for preparing or showing you the experiment, but due to some official work which was very urgent in the college, so I was unable to take the class. So the laboratory I am starting today, okay, because after so many theory classes, because till now in the theory class we have just means in the starting we have just discussed about the transfer function, then we have discussed about the, you can say, or rather what is the how to use the block reduction technique to find the transfer function, the Mason-Gaines formula. Then we have entered into the time response. Okay, so since the first experiment is related to time response, so before completing the time response topic, it was not possible for me to conduct the lab. So now, since you have understood what is the basic concept of time response, so we can start the lab. Now, I think one more thing, that this in the other part of the syllabus is being covered by principal sir, right? So I think principal sir has covered the I think that particular topic of what is that? He has started the root locus now. Okay, yeah, I think has he started root locus? Principal sir has started root locus, isn't it? Yes, sir. Root locus. Okay. So Rao-Thorich criteria, I think he has completed. Yes, sir. Okay. Yes. So okay, so these are the experiments. So number one is to study the time response of a closed loop second order system. So response of a second order system, all of you have already studied in the theory class. So there is a peak overshoot, then a settling time, then a delay time, rise time. Okay, all these things we have studied. So we will be seeing that in the MATLAB. Okay. And before second order, I will be also showing you the time response and pole zero mapping. Basic things are also there. I will show you today itself in the MATLAB. Okay, then you can see the other topics or are using PID controllers. Okay, lead lag controllers. So once I cover the controller section, so many experiments can be covered together. Okay, so I will be completing those experiments. And since root locus have been already started by principal sir, so I hope in the next class we can complete the root locus also. Okay. Okay, so moving on for today's experiment. So today I will be showing you the experiment number one, that is the to study the time response of a closed loop second order system. So this is the name of the experiment. But before I jump into the second order system, I want to show you some MATLAB techniques for the first order system also. Okay, first order system and pole zero mapping, because I think these are also important, because without using this pole zero mapping concept you will not be able to understand the other part of the experiments or other experiments, such as the stability root locus Bode plot, Nyquist plot. In those areas the pole zero mapping is required. Okay, so first tell me, how many students of you do have MATLAB with you at your home? Do you have MATLAB? MATLAB किसी के पास है क्या घर पे, कंप्यूटर पे? No, sir. किसी के पास नहीं है? अच्छा, ठीक है.
Okay, so I will just show you the experiments in my computer. I will share the screen with you. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पोल जीरो, ठीक है। पोल क्या होता है और जीरो क्या होता है सबको याद है। अच्छा ये बताओ कि ये, हाँ ये वाला जो ट्रांसफर फंक्शन दिख रहा है जीएस, इसमें कितने पोल्स है कितने जीरोस है। Sir, 3 poles 2 0. 3 poles 2 zeros. What is the order? What is the order of this transfer function? 3. 3. Second order, sir. Second order? No, it is a third order transfer function. Third order. Order मतलब क्या? Yes, sir. Third order. डिनोमिनेटर में जितना, हाँ, मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा वो होता है ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर। डिनोमिनेटर में अगर s प्लस 5 को एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू आएगा, तो वो मैक्सिमम ऑर्डर होगा, मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा, तो वो होता है ऑर्डर। तो मतलब जो भी सिस्टम का ऑर्डर है उतना ही वही होगा उसका नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो रूट निकलता है वो होता है पोल्स और न्यूमिनेटर में जो एस का वैल्यू रूट निकलता है वो होता है जीरोस। सो दिस अ थर्ड ऑर्डर सिस्टम। अच्छा टाइप किसी को याद है, टाइप किसको कहते हैं? Sir, zero. टाइप जीरो Yes, sir. Pole at origin, sir. yes, pole at the origin is called type, but in this case yes there is no pole at the origin, 0. Yes. so the pole is zero. Okay, oh, sorry, the type is zero. Okay, there are no poles at the origin. अच्छा अब गेन, यहाँ पर देखो ये वाला एग्जांपल में एक ट्रांसफर फंक्शन है जीएस और लिखा है ऑब्टेन दी पोल जीरो एंड गेन वैल्यूज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। सो पोल जीरो और गेन वैल्यूज, तो पोल को हम मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? मैथमेटिकली कैसे निकालने के पोल? अगर पोल मान लो कि तुमको बोला गया है इसका पोल क्या है, तो कितने पोल है वो तो तुमने बता दिया, 3 पोल है क्योंकि एस का पावर 3 है। पोल को कैलकुलेट कैसे करोगे? सर नीचे वाले के 0 से इक्वेट कर देंगे सर। हाँ तो एक होता है एस इक्वल्स टू -5, एक तो -5 होगा, ठीक है। बिफोर मैटलैब आई एम जस्ट शोइंग यू दी हैंड कैलकुलेशन, क्योंकि मैटलैब में वही तुम लिखोगे, क्योंकि वो प्लॉटिंग जब आएगा ना पोल जीरो का तो वो समझने में आसानी होगा, जिसने भी अगर शायद क्लास मिस कर गया हो थ्योरी उनके लिए। एक मिनट, हाँ तो जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 बाई s प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7, s प्लस 5 s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7, ठीक है। अब तीनों पोल्स है तो पहले पोल्स निकालेंगे, पोल्स। सो पोल्स आर हाउ मेनी पोल्स? नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स इज 3। सो एस का एक तो पोल है -5, वो कैसे निकाला? एस प्लस 5 को 0 से सब इक्वल कर दिया तो हो गया एस इक्वल्स टू -5। अब बाकी जो है दो है जो वो इसके साथ ये इसके लिए करेंगे, तो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर s का रूट निकलेगा, ठीक है, तो ये तो सिंपल रूट नहीं निकलेगा क्योंकि इसको सीधराचार्य फॉर्मूला से हमको निकालना पड़ेगा। सो s का 2 रूट निकलेगा, ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर ऑफ, सॉरी दिस b, वन सेकेंड, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो क्या है, क्या यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट निकलेगा। मान लो कि रूट का वैल्यू है p प्लस माइनस जे क्यू, ठीक है, p प्लस माइनस जे क्यू।
तो एक पोल है -5, दूसरा है P प्लस जे क्यू, और तीसरा है P माइनस जे क्यू। अब इसका जब प्लॉट करेंगे हम लोग, क्योंकि यहां पर देखो सेकंड का पार्ट है ऑल्सो ऑब्टेन दी पोल जीरो प्लॉट, तो पोल जीरो को प्लॉट करना है। तो अगर फिजिकली प्लॉट करेंगे तो फिजिकली प्लॉट करने के लिए एक मान लो कि ये जो है ये है रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, इसको कौन सा प्लेन कहेंगे? इसका प्लेन का नाम क्या है जिसका रियल और इमेजिनरी होता है? एक्स एक्सिस रियल और वाई एक्सिस इमेजिनरी। हाँ, एक्सेस रियल, वाई एक्सेस इमेजिनरी, लेकिन इस प्लेन का एक नाम है। प्लेन क्या है? सर एस प्लेन। यस, एस प्लेन। एस प्लेन क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग एस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि ये टाइम डोमेन नहीं है, एस डोमेन है। एस डोमेन के साथ फर्क क्या है? एस डोमेन मतलब सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ठीक है। सिग्मा प्लस जे ओमेगा मतलब ये जो सिग्मा है ये एक रियल एक्सिस है, ओमेगा है जो इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में क्या होता है? एक्स वाई प्लेन नॉर्मली होता है, उसमें रियल इमेजिनरी नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि तुम ज्योमेट्री में करे हो। लेकिन यहां पर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इमेजिनरी प्लेन। सो एस प्लेन इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, सो इट इज रादर कॉल्ड द complex plane. It is called the complex plane. Okay. So this one is sigma, this is omega और j omega. तो एक पोल है जो हम लोगों को मिला है वो है -5। तो -5 मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रियल एक्सिस है, ये माइनस सिग्मा है, ये माइनस जी ओमेगा है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब ये हो गया इमेजिनरी में, ऊपर में ऐसा, ठीक है। अब -5 मतलब यहां पर होगा 1 2 3 4 5, ये होगा पोल, तो इसको हम सर्कल करेंगे। इससे पता चलता है कि यहां पर एक पोल है, और जो बाकी का पोल 2 है वो कॉम्प्लेक्स पोल है। तो मतलब ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर नहीं रहेगा, ये इसका एक वैल्यू होगा, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे यहां पर। सॉरी ये जो है इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस, क्योंकि पोल को क्रॉस करते हैं हम लोग, ठीक है। और बाकी जो पोल है वो एक होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि मान लो इसका वैल्यू है पी का वैल्यू पता नहीं, जो भी हो सकता है, ये वैल्यू है पी, सॉरी ये वैल्यू है पी, ये वैल्यू है पी, ये है प्लस क्यू, यू है, ये है माइनस क्यू, ठीक है, ये है माइनस क्यू, क्योंकि जो रूट है वो है पी कॉमन है और प्लस क्यू माइनस क्यू है। सो दिस पॉइंट इज पी प्लस जे क्यू and this is P minus JQ. ओके, अब जीरोस के लिए भी वही है। जीरो को हम लोग अगर डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो जीरो शायद इसको हमको नहीं करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, क्योंकि इसको मिडिल टर्म ब्रेक करने के, जैसे मैथमेटिक्स में करते थे, इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हम लोग। ये क्या आएगा? s to the power s plus 3, सॉरी s into s plus 3 प्लस 1 s plus 3, सॉरी यहाँ पर, हाँ, सो इस ये आ गया s plus 1 s plus 3। तो मतलब जीरो जो है वो एक आएगा -1 पे, -1 पे एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा, और -3 पे एक आएगा। सॉरी ये -1 नहीं है, ये -1 है और ये -3 है, ठीक है। तो s plus 1 into s plus 3, तो s equals to -3, s equals to -1, 2 आ गया। तो जीरोस जो है s equals to -3, s equals to -1, ठीक है। तो ये हम लोग मैटलैब में देखेंगे। और सो पोल
कैसे अच्छा पोल को निकालना है तो फिजिकली कैसे निकालते हैं वो हमको पता चल गया कि मैं इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वल्स टू 0 करके, जीरोस को भी वैसे ही। गेन जो होता है, गेन मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो वाला इक्वेशन जब लिखेंगे, जैसे कि कोई मान लो कि कोई अगर कॉमन आ गया, कॉमन वैल्यू आ गया, तो इसको मतलब कि जो लास्ट टर्म होता है ना उसको वन बैठा के फिर कॉमन लेके उसको करना पड़ता है ऐसा। तो ये मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस होल थिंग कैन बी डन इन मैटलैब। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज हाउ टू डिफाइन, first to define. So you can see these steps. The first step which is shown over here, you have to write this first step. फर्स्ट स्टेप मतलब नम मतलब कोई भी वेरिएबल, NUM लिख सकते हो, A लिख सकते हो, B लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। एक वेरिएबल को डिफाइन करना है, एरे, एक एरे डिफाइन करना है, ठीक है। नम क्यों लिखा है? क्योंकि न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं वेरिएबल को, इसके लिए नम लिख रहे हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो हम लोग एक वेरिएबल का नाम दे रहे हैं NUM नम इक्वल्स टू थर्ड ब्रैकेट 1 4 3। तो मतलब एक वेरिएबल एक वेरिएबल है, ओके, जो एक एरे को सेव कर रहा है। तो मान लो कि हम 1 2 3 अगर ऐसे लिख लिया, 1 4 3 ऐसे लिख लिया नम, तो पहले मैटलैब खोलेंगे, मैटलैब के कॉमन विंडो में भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर देखेंगे इसका। तो क्या आएगा? नम 1 4 3 ऐसा आएगा, मतलब कि नम जो है वो 3 वेरिएबल स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब जो दूसरा आएगा वो है देन कॉन्वोल्यूशन ऑफ 1 5 3 4 7। क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट है, मतलब कि s+5 है, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन है s² + 4s + 7। तो 1 5 मतलब जैसे कि यहां पर लिया है ना न्यूमरेटर में 1 4 3, क्यों लिया? क्योंकि न्यूमरेटर में देखो s² + 4s + 3 है, मतलब s का कंपोनेंट क्या है? x का कोफिशिएंट, क्या? कोफिशिएंट सर। सो कोफिशिएंट, यस कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट इज 1, x का कोफिशिएंट है 1। 4 का जो कोफिशिएंट है वो है s का फर्स्ट s² का कोफिशिएंट है 1, और फिर मिडिल टर्म जो है s का है 4, और फिर h⁻0 का है 3। So s² is 1 and s⁻1 coefficient is 4 and h⁻0 coefficient is 3. So we are writing, that is why we are writing 1 4 3. अब डिनोमिनेटर में जब आएगा तब तुम इसको मल्टीप्लाई करके फिर लिख सकते हो, तो फिर कॉन्वोल्यूशन लिखना नहीं पड़ेगा। अगर तुम मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, जैसा है वैसा ही रखना है, तो उसको भी यूज कर सकते हो। सो फिर उसको लिखना है CUNV ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में, फिर दोनों का थर्ड ब्रैकेट आएगा। सो इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका है 5, इसका है 1 4 7। अब CUNV को इस्तेमाल करने से पहले CUNV का मतलब क्या है, सो उसका जानने के लिए भी ट्रिक है, हेल्प CUNV। ओके, सो इट इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन एंड पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पर लिखा है कॉन्वोल्यूशन और पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन। उसका मतलब है अगर CUNV AB रखे तो दोनों वेक्टर, मतलब दोनों एरे को जिसका लेंथ 1 से ऊपर है उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मान लो कि ये वाला ले लिया, इसको हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आया 3 19 27 35 ऑटोमेटिकली। मतलब कि तुमको ये वाला सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम हाथ से सॉल्व करो तो क्या आएगा, देखो s²। सर वो 147 होना चाहिए ना? कौन सा? सर यहाँ कॉन्वोल्यूशन में एक्चुअली यस 147, इसलिए 3 आया, ठीक। तो 147 होगा, तो ये 1/4 लिखेंगे, हाँ, तो वो होगा 1 9 27 35। तो मतलब इसको तुम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मतलब s³ फिर 4s² + 7s, देन 5s² + 9s + 35। तो ये यहाँ पर s³ था, तो क्या आएगा s³, फिर आएगा 9s² है ना, 20s। हाँ
20s 20s, नहीं 20s नहीं, 19। ये देखो एस एस क्यूब है, अगर इसको हम हाथ में सॉल्व कर रहे हैं तो ये जरूर भी नहीं है तुम, ये तो यहाँ पर भी वर्बली हो सकता है, क्योंकि एस एस क्यूब देन इज 4s स्क्वायर देन इज 7s, फिर ये आता है 5s स्क्वायर, तो 4s स्क्वायर प्लस 5s स्क्वायर कितना आया 9s स्क्वायर, फिर ये है 20s, ठीक है। तो 20s और 7s में 27s, हाँ ये वाला 20s है, तो 20s और 7s में 27s और 35, तो इसके लिए ये आया है 9 27, तो 1 9 27 35। तो मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्टोर कर रहा है, तो तुमको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ रहा है, मैटलैब खुद मल्टीप्लिकेशन करके तुमको दिखा रहा है, वो स्टोर कर रहा है। तो तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो, नहीं देखना नहीं भी देख सकते हो, ठीक है। इट इज स्टोरिंग इट इन द पॉलिनोमियल और द एरे विच इज कॉल्ड डेड, ठीक है। अब तीसरा जो है वो है जी मतलब जी एक वेरिएबल है, तुम इसको जी रख सकते हो, इसको कुछ भी रख सकते हो। जी रखा क्यों है, क्योंकि इसका नाम जीएस लिखा है इसलिए जी। तो ये करने से क्या होगा, थर्ड वाला करने से पूरा इसको ट्रांसफर फंक्शन में दिखाएगा। ये टीएफ जो है ना, टीएफ एक फंक्शन है, जैसे कि CUN भी एक फंक्शन है, टीएफ भी एक फंक्शन है। तो ये दो फंक्शन क्या कर रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब कि इस वेरिएबल और सेकेंड वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल और सेकेंड वेरिएबल में जो भी वैल्यूज है, उस वैल्यूज को पहले वाला में वो समझ लेगा कि पहले जो वेरिएबल है वो है न्यूमरेटर के लिए और दूसरा है डिनोमिनेटर के लिए। अगर तुम इसको ए और बी लिखते हो तो भी कर सकते हो, मान लो कि यहां पर ए लिख दिया, ठीक है, इसको बी लिख दिया, फिर तुमको इसको भी ए लिखना पड़ेगा, इसको बी लिखना पड़ेगा, वो सीक्वेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर सीक्वेंस रख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो पहले वाले को न्यूमरेटर लेगा, दूसरे वाले को डिनोमिनेटर लेगा, फिर इसको ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो टीएफ जो है, टीएफ एक ट्रांसफर फंक्शन है, तो देखते हैं टीएफ का हेल्प में जाके एक्चुअली ट्रांसफर फंक्शन है कि नहीं है। हाँ, तो ये लिखा है कि टीएफ इज नथिंग बट दी ट्रांसफर फंक्शन, कंस्ट्रक्ट ट्रांसफर फंक्शन और कन्वर्ट टू ट्रांसफर फंक्शन। इस फंक्शन का मतलब है दैट मैटलैब इज इंस्ट्रक्टेड टू कन्वर्ट इनटू ट्रांसफर फंक्शन, कन्वर्ट टू ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो ये करने से ये ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो कैसे ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, एस एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 डिवाइडेड बाई s टू द पावर 3, दैट मीन्स s क्यूब प्लस 9s स्क्वायर प्लस 27s प्लस 35, ठीक है। ये पूरा हो गया। फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ये पहले, अच्छा सेकेंड पार्ट नहीं, अभी भी ये पार्ट चल रहा है। तो फिर हम लोग क्या किया, ट्रांसफर फंक्शन को फ्रेम किया है, अब उसका पोल जीरो और गेन निकालना है। पोल जीरो गेन निकालने के लिए एक फंक्शन की जरूरत है। अच्छा मैं एक एक करके ये दिखा रहा हूं, इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने से क्या होता है कि वर्क स्पेस में जो वेरिएबल होता है वो गायब हो जाता है, ठीक है। फिर करेंगे CLC, तो क्लियर स्क्रीन हो गया। अब कमांड विंडो में हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग एक स्क्रिप्ट में लिखेंगे, M फाइल में। तो यहां पर हम लोग न्यू स्क्रिप्ट करेंगे, एक न्यू स्क्रिप्ट खोल गया, ठीक है, एक खुल गया है न्यू स्क्रिप्ट। अब इसको हम लोग एक एक करके ये स्टेप यहां पर लिखेंगे, ठीक है। इसको सेव करेंगे, सेव का एक नाम दे सकते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। सर ये सब कुछ नया है, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। कौन सा चीज? ये क्लास सर सेशन। क्लास सेशन, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्यों, तुमको रिकॉर्ड चाहिए ना? यस सर। हाँ तो रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब में हम देंगे इसको। ये तुम पहले कर चुके हो ये मैटलैब वाला? नो सर। ओ मैटलैब में M फाइल में काम नहीं किया पहले? नो सर। ओके ठीक है। तो मैटलैब का तो इस्तेमाल पता है ना, मैटलैब क्यों करते हैं, इसका इस्तेमाल पता है? सर्किट थ्योरी में नहीं किए? नो सर नहीं किया है। ओह अच्छा, मैटलैब मतलब के मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। मैटलैब में क्या होता है, जितना भी तुमको पावर सिस्टम तुम सब्जेक्ट पढ़े हो, पावर सिस्टम हो गया? नहीं हुआ? यस सर।
पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन किए हो, फॉल्ट प्रोटेक्शन? सर पिछले सेम में ही था। फॉल्ट प्रोटेक्शन, अच्छा पिछले सेम में था, ठीक है। अच्छा मान लो कि उसमें लोड फ्लो, न्यूटन रैप्सन ये सब हो गया क्या? क्योंकि मुझे सच बताओ जेयूटी के सिलेबस बारे को नहीं पता है, क्योंकि आई वाज प्रीवियसली इन वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी, सो आई डोंट नो बिकॉज इन वेस्ट बंगाल पिछले यूनिवर्सिटी। पिछले हाँ हाँ, सेम में ही था तो सब कुछ ऑनलाइन में ही तो ऐसे ही खत्म हो गया सर। नहीं नहीं, मतलब कि लोड फ्लो, मतलब न्यूटन रैप्सन लोड फ्लो, गॉस सीडल लोड लोड फ्लो फ्लो, था सर। ये सब नहीं हुआ है सर। नहीं नहीं, थ्योरी में हुआ है ना? सर लोड फ्लो सर थ्योरी में भी नहीं था, ये शायद सेवन ये सिक्स सेम में होगा सर। अच्छा 6 सेम में होगा, तभी बाकी है, तो फिर ठीक है। तो फिर ठीक है, हाँ 6 सेम में होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी सिस्टम में होता है। ओके, सो नो प्रॉब्लम। सर्किट थ्योरी में अगर होता तो अच्छा होता, क्योंकि मैटलैब में जो है ना, मैटलैब में तो सिंस यू डोंट नो द बेसिक्स, सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ शॉर्ट मीन्स आइडिया। देन मैटलैब देयर कैन बी मेनी थिंग्स कैन बी डन। तो जनरली 2 टाइप्स का चीज होता है जनरली फॉर अ स्टूडेंट एंड फॉर अ बिगिनर, फॉर अ नॉर्मल रिसर्चर। एक होता है कोडिंग और एक होता है सिमुलेशन, ठीक है। कोडिंग मतलब यहां पर देखो, यहां पर हम लोग कोड लिखेंगे, कोड लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम जो रन करेंगे ना, ये देखो रन का बटन है, इसको रन करेंगे तो ये देखो यहां पर दिख रहा है, ये देखो कौन सा फाइल रन किया, exp, जो जिस फाइल से मैंने सेव किया है वो फाइल को रन कर रहा है। पहला वाला लाइन रन हुआ, दूसरा वाला लाइन रन हुआ, तीसरा वाला लाइन रन होके दिखा रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि तुम पहला वाला लाइन रन करना चाहते हो लेकिन तुम देखना नहीं चाहते, तुम सिर्फ जी को देखना चाहते हो, तो क्या करोगे? या फिर सेमीकोलन लगा दोगे। सेमीकोलन का मतलब होता है कि जो जिस लाइन को देखो यहाँ पर इक्वल टू साइन हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पर नहीं हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब है कि द एग्जीक्यूशन विल बी डन इनसाइड मैटलैब बट द रिजल्ट्स विल नॉट बी शोन, यू आर हाइडिंग द रिजल्ट्स, ठीक। अगर इसको वापस रन करेंगे तो फिर देखो ये दोबारा रन हुआ लेकिन जी को सिर्फ दिखाया, ठीक है। अब दो चीज एक साथ रन हो रहा है तो मुझे पहले वाला देखना नहीं है, सिर्फ इस दिया हुआ देखना है। तो जब भी कोई मैटलैब कोड प्रोग्राम शुरू करोगे तो क्लियर लिखना पड़ता है, फिर सीएलसी लिखना पड़ता है। मतलब कि जब भी मान लो कि तुमने पहले एक प्रोग्राम किया था, ठीक है, 1 घंटे बाद फिर बैठे हो दूसरा प्रोग्राम कर रहे हो, वो रन कर रहे हो, तो रन करने के बाद इसको कहते हैं हम लोग कमांड विंडो। मतलब कि जो कमांड हम लोग दे रहे हैं प्रोग्राम कोड में, ये होता है एम फाइल, ये देखो डॉट एम करके सेव हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं एम फाइल और स्क्रिप्ट, ठीक है। इसको न्यू स्क्रिप्ट कर सकते हो, स्क्रिप्ट दोबारा दूसरा स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा ऐसा भी क्लिक कर सकते हो। तो बाजू में तुम प्रोग्राम कर सकते हो, 3-4 फाइल एक साथ प्रोग्राम कर सकते हो। वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी फ्रेंडली सॉफ्टवेयर मैटलैब, ठीक है। हम लोग तो ऐसे 3-4 एक साथ करते हैं प्रोग्रामिंग। तो उसका एग्जीक्यूशन करने के बाद तुमको यहाँ पर दिखेगा कि क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये देखो वेरिएबल भी सेव हो गया, डेन नाम का एक वेरिएबल सेव। इसको क्लिक करके तुम इसको देख सकते हो कि वेरिएबल में क्या सेव हुआ है, ठीक है। नम में तुम देख सकते हो वेरिएबल में क्या सेव हुआ है, जी में देख सकते हो वेरिएबल क्या सेव, लेकिन ये वेरिएबल आकार के मैंने नहीं दिखाएगा क्योंकि फंक्शन के हिसाब से सेव हुआ है, इसलिए दिस इज नॉट अ एक्सेल शीट व्हाटएवर। तो इसको कहते हैं वर्कस्पेस। वर्कस्पेस मतलब जो वेरिएबल तुम लोग डिफाइन किए हो मैटलैब के अंदर मेमोरी में है, वो वर्कस्पेस में रहेगा, दिस इज ए मेमोरी। अब जब क्लियर करते हैं ना, क्लियर कमांड मतलब मेमोरी को खाली कर देते हैं। तो मान लो कि तुम एक दूसरा नया प्रोग्राम करना चाहते हो मैटलैब में, दूसरा अभी करंट जो है, मतलब कि अगर मैं मैटलैब के यहां से बंद कर दूं, मान लो क्रॉस बटन करके बंद कर दूं, तो पूरा मेमोरी खाली हो जाएगा। ये क्यों? ये टेम्पोररी मेमोरी है, रैम में सेव होता है। लेकिन प्रोग्राम में जो एम फाइल सेव किया है वो सेव है, मैं वापस डेस्कटॉप में सेव किया, मैं इसको डबल क्लिक करके इसे खोल सकता हूं, ठीक है, आई कैन ओपन इट। But suppose you want to do this program once again and you don't want anything to be in the memory, so you give the command clear, ठीक है। clear command को दोगे, ठीक है। अगर एक साथ लिख रहे मतलब जब भी मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा तो देखो क्लियर तो होगा ही, और सीएलसी मतलब ये वाला पूरा क्लियर हो जाएगा, ये वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक साथ होगा। तो पहले क्लियर होगा मेमोरी, फिर स्क्रीन, तो ये स्क्रीन है कमांड विंडो का।
मैंने रन कर दिया, ठीक है, देखो क्लियर होके वापस आ गया, ठीक है। अगर मैं ऐसा क्लियर करता हूं इसको तो ये क्लियर है, CLC करता हूं पूरा चला गया। लेकिन मैं प्रोग्राम शुरू करता हूं तो एक साथ होके ये दो स्टेप तुमको नहीं दिखाएगा, फिर तीसरा वाला स्टेप दिखाएगा, ठीक है। सो यू कैन सी इट इज शोइंग दी थर्ड स्टेप ओनली, ठीक है। अगर तुम इसको भी हाइड करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं दिखाएगा, फिर कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल तुम्हारा ये ट्रांसफर फंक्शन एग्जीक्यूशन। तो TF करके ट्रांसफर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। अब फोर्थ जो लाइन है, फोर्थ लाइन जो था वो है, हम लोग क्या करेंगे, पोल जीरो और गेन को प्रेजेंट करेंगे। मतलब कि ट्रांसफर फंक्शन तो हमको मिल गया, ये ट्रांसफर फंक्शन हमको मिल गया है, ठीक है, हमने फ्रेम कर दिया, मतलब मैटलैब के अंदर घुसा दिया ट्रांसफर फंक्शन को, ट्रांसफर फंक्शन के आकार में घुसा दिया, ठीक है, डाल दिया इसको। फिर यहां से मैटलैब को बोलेंगे तुम मेरे लिए जीरो और पोल निकाल के दे दो, मुझे हिसाब किताब नहीं करना है, तुम मुझे निकाल के दे दो। तो वो निकाल के दे देगा, कैसे, ये वाला जो प्रोग्राम कोड है उसके जरिए से। ये देखो TF to ZP, ये जो प्रोग्राम कोड है TF to ZP, इस प्रोग्राम कोड के मदद से, ये प्रोग्राम फंक्शन, सॉरी ये फंक्शन है। इस फंक्शन का मतलब क्या है देखते हैं। कोई भी फंक्शन का मतलब जानना हो तो हेल्प स्पेस फंक्शन, इसका मतलब है ट्रांसफर फंक्शन टू जीरो पोल कन्वर्शन। मतलब के ट्रांसफर फंक्शन खुद तुमको एक पोल जीरो और गेन निकाल के दे देगा, ठीक है। इसका कैसे इस्तेमाल करना है वो भी दिखा दिया, ऐसे लिखना है प्रोग्राम कोड, ठीक है। प्रोग्राम कोड को ऐसे निकालना है, लिखना है एज अ प्रोग्रामर, यू हैव टू राइट इन दिस वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन 3 वेरिएबल्स। मान लो कि ZPK, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि पहला जो वेरिएबल तुम लोगे, तुम इनको XYZ ले सकते हो, ABC ले सकते हो, PQR ले सकते हो, ओके। तो ZPK क्यों लिया, क्योंकि पहला जो वेरिएबल है उसमें जीरो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, तो इसलिए Z लिखा है, क्योंकि हमको याद रहे कि जीरो सेव हो रहा है। ये ऑर्डर है, जैसे कि पहले किया था ना कि G, ये वाला TF नाम कॉमा डेन, तो पहले वाला जो रहेगा, तुम अगर डेन कॉमा नाम करोगे तो फिर ट्रांसफर फंक्शन कैसा आएगा तुम देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं उल्टा करता हूं, एक मिनट, इसमें तो सेव है ना नाम कॉमा डेन, तो सेम है, सेव ऑलरेडी। तो मान लो कि यहाँ पे उल्टा करता हूं तो फिर भी ट्रांसफर दिखेगा, देखो उल्टा हो गया, ये ऊपर में चला गया, ये नीचे चला गया, क्योंकि मैटलैब को लग रहा है कि डेन जो है वो न्यूमरेटर में है और नाम जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए उल्टा दिखाएगा। ये ऑर्डर है, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम तो ट्रांसफर फंक्शन उल्टा आएगा, ये वाला नीचे वाला ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, क्योंकि मैटलैब को, ये मैटलैब की गलती नहीं है, क्योंकि मैटलैब का कोड ही ऐसा है, ट्रांसफर इसका जो फंक्शन ही ऐसा है कि पहला वाला जो वेरिएबल है वो उसको न्यूमरेटर में हिसाब से लेगा। ठीक वैसे ही यहां पर इस फंक्शन को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो TF2ZP ये फंक्शन का ही नाम है, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते। ZPK ये वेरिएबल है, तुम ये कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये फंक्शन एक्चुअल फंक्शन है। उसके अंदर ब्रैकेट में लिखना है नाम कॉमा डेन, मतलब कि फिर वैसा ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर तुम यहां पर डेन वाला लिख दिए तो फिर क्या करेगा, वो गलती नहीं निकाल, वो वैसे ही तुमको पोल जीरो दिखा देगा, मतलब कि जीरो को पोल दिखाएगा, पोल को जीरो दिखाएगा। इसलिए तुमको ऑर्डर को सही से लिखना है कि TF2ZP ब्रैकेट, then you have to write the variable where you have saved the numerator value, comma variable where you have saved the denominator value, then equals to, you have to define 3 separate variables, any 3, A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R, anything. First variable, what will happen, the transfer function will calculate zeros and it will store in the first variable. Then the transfer function will calculate poles, it will store in the second variable. Then the transfer function will calculate the gain. Gain मतलब कि ये वाला gain, क्योंकि ये ट्रांसफर फंक्शन जब डिफाइन करते हैं, मैंने थ्योरी में बोला था कि एक जीरोस को ऐसे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, पोल्स को ऐसे सॉल्व करते हैं, और एक कांस्टेंट निकल के आता है, 1 होता है, फिर 2 होता है, कुछ भी। अगर इसको सॉल्व करोगे ना, ऐसे लिखोगे तो तुम देखोगे एक कांस्टेंट आएगा कुछ, तो वो k जो है वो कांस्टेंट है, वो k में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफर फंक्शन
को पोल जीरो और गेन में कन्वर्ट करता है ये वाला फंक्शन। ये मैटलब फंक्शन करता है, मैटलब में इनबिल्ट है, मैटलब मैन्युफैक्चरर ने उसको डाल दिया अंदर, ठीक है। तो लास्ट में जो है हाँ ये वाला, तो चौथा लाइन हम लोग डाल के देखते क्या आता है, इसको हम लोग यहां पर डालते हैं, ठीक है। तो वापस करेंगे क्योंकि फिर से क्लियर स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है, सब क्लियर हो गया। फिर जी को दिखाया, फिर देखो जेड क्यू के, यहां पर हमने जेड लिखा है, पी लिखा है, के लिखा है, तो जेड में क्या स्टोर होगा, जीरोस, जेड में जीरो स्टोर हो गया। तो हमने क्या जीरो निकाला था, यहां पर क्या जीरो निकाला था, -1 -3, तो देखो -1 -3 आ गया, ठीक है। दूसरे में क्या था, -5 था, -5 रियल नंबर था, इसलिए देखो ये इमेजिनरी हिसाब के दिखा रहा है, तो -5 प्लस 0i माने इमेजिनरी नंबर, तो 0 है क्योंकि एक्चुअल -5 है, -5 प्लस 0i है, इसलिए वो टोटल उसको भी दिखाएगा, i को भी दिखाएगा, i को नहीं करेगा क्योंकि उसका ऑर्डर ही ऐसा है। सेकेंड जो है वो है -2 प्लस 1.7321i एंड देन -2 माइनस 1.72i, मतलब यहां जो मैंने पी क्यू लिखा था ना, तो p जो है -2 है, तो ये ऐसा यहां पर नहीं होगा क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि ये रियल में जाएगा नहीं, क्योंकि हाँ रियल ही होगा क्योंकि ये नेगेटिव रियल होगा, तो यहां पर 2 आएगा, ये हो गया p, ये हो गया q, तो दो पोल जो है वो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, जो है -2 प्लस पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव प्लस 1.73 -2 माइनस 1.732i, ठीक है। और गेन जो है वो के है, वो जो है 1 है, क्योंकि यहां पर देखो तुम सॉल्व करके देखो, यहां पर 1 ही आएगा क्योंकि कोई भी कांस्टेंट निकल के बाहर नहीं आ रहा है, तो फिर 1 आएगा, ठीक है, आ गया। फिर लास्ट वाला जो स्टेप है ये है पोल जीरो मैपिंग। आप ये प्लॉट करके दिखाएगा, लास्ट वाला प्लॉट करके दिखाएगा, मतलब इसका जो फंक्शन है पीजे मैप, पीजे मैप में ब्रैकेट में तुमको ट्रांसफर फंक्शन लिखना है, जो भी ट्रांसफर फंक्शन सेव हो है ना, जिस वेरिएबल में सेव है उस वेरिएबल को लिखना है। यहां पर अगर नम लिख दिए तो फिर वो एरर दिखाएगा, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर मैं अगर नम लिखता हूं पीजे, देखते क्या दिखाता है, एरर दिखाता है क्योंकि रॉन्ग इनपुट आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि उसमें ट्रांसफर फंक्शन का ही रूप डालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहां पर तो देखो ऑटोमेटिकली प्लॉट हो गया। क्या प्लॉट हुआ है, राइट तरफ दाएं तरफ देखो, ये एक एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस, ये है रियल एक्सिस है, ये जो है इमेज एक्सिस। तुम इसको देखो, तुम लोग यहां पर देखो, यहां पर देखो -2 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 0 है, और फिर ऊपर +2, तो मतलब ये है रेफरेंस एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक्स ऐसा एक्सिस ने दिखाएगा। हाँ, तुमको अगर ग्रिड चाहिए तो ग्रिड हम डाल सकते हैं यहाँ पे, इसको कॉमन देंगे ग्रिड ऑन, ठीक है। अच्छा, ग्रिड ऑन करने से ऐसा हो गया, और भी कंफ्यूजिंग हो गया, चलो ग्रिड ऑन ऐसा दिखाता नहीं है, पोल जीरो इसलिए दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो, ये वाला जूम, ठीक है। अच्छा, तो दिस वन इज 0, सो यू कैन सी दिस इज -5, सो क्रॉस मतलब क्या, पोल, तो यहां पर कितने क्रॉस है, 1 2 3 क्रॉस है, तो तुमको एक्सिस में बराबर इसको देखना है कि कौन सा पॉइंट है। तो ये देखो एक्स एक्सिस में है, मतलब रियल एक्सिस में है, तो रियल एक्सिस में कौन होता है, रियल एक्सिस में जो रियल नंबर है वही होता है रियल एक्सिस में, ठीक है। तो मतलब कि ये रियल रूट है, ये रूट जो है वो रियल है, रियल पोल है। 2 जीरोस है, एक है -1 में, एक है -3 में, क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव में है, ये वाला खाली है ना, ये वाला हिस्सा खाली है, इसलिए मैटलैब यहां से शुरू कर रहा है दिखाना। मैटलैब क्या कर रहा है, वो वेस्टेज नहीं होगा, इसलिए वो यहां से शुरू कर रहा है, इसलिए ये 0 है। दाएं तरफ रियल एक्सिस का पॉजिटिव दिखा नहीं रहा है, रियल एक्सिस का पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है, सिर्फ नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है।
तो ये वाला हिस्सा तो नहीं दिखा रहा, तो -1 है, -3 में दो जीरोज है, एक पोल है -5 और दो पोल है कॉम्प्लेक्स पोल -2, ये वाला -2 ±1.75 जो भी 3.21 है, और ये -2 -1.7321 है। तो मिल गया हमको 3 पोल और 2 जीरोस, प्लॉट हो गया। ठीक है, तो इसको हम एक साथ कर सकते हैं। एक साथ कैसे करेंगे? एक ही बार चाहते हो अगर, तो एक मैटलैब कोड में, अगर तुम अलग अलग चाहते हो तो फिर कमांड विंडो में भी टाइप कर सकते हो। यहाँ पर देखो, तुम 2+2 लिखेंगे तो 4 आएगा, कुछ भी लिखेंगे तो आएगा, तो तुमको कमांड विंडो में भी लिख सकते हो। या फिर अगर तुम टोटल एक प्रोग्राम कोड लिखना चाहते हो तो फिर कमांड विंडो में तो पॉसिबल नहीं कि हर एक बार लिखो, क्योंकि ढूंढना पड़ता है। प्रोग्राम कोड के एक खासियत ये है कि तुम अगर प्रोग्रामर हो तो तुमको 50 लाइन 100 लाइन का प्रोग्राम तो होगा ही, तो तुम लाइन गिन सकते हो कौन सा लाइन में क्या है, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद तुम रिजल्ट को देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग वापस देख रहे हैं। अच्छा, ये वाला तो नहीं दिया ना, इसलिए नहीं दिखा रहा। अच्छा, लास्ट वाला, हाँ ठीक है। तो फिर से एग्जीक्यूट हो गया और मैप ग्राफ भी दिखा दिया। तो जो प्रॉब्लम था एग्जांपल में था कि ऑब्टेन पोल जीरो गेन, तो पोल जीरो गेन हमको मिल गया। कैसे मिला? पहले ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहला है ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन करो इस तीनों स्टेप से, फिर पोल जीरो गेन को दिखाओ, फिर ऑब्टेन दी पोल जीरो प्लॉट, प्लॉट को भी करो। प्लॉट करने के बाद तुमको ये मिल जाएगा, ये वाला जो ग्राफ मैंने बंद कर दिया एक्चुअली, वो मिल जाता है। तो ये होता है एक कोडिंग। तो ट्रांसफर फंक्शन का एक सिंपल एग्जांपल था, मैंने दिखाया। अब जो मैं बोलने पर रह गया, तो कोडिंग के बारे में समझ में आ गया। कोडिंग, तो कोडिंग में तुम लोग सी प्रोग्रामिंग किए हो पहले कंप्यूटर में? सी प्रोग्रामिंग, फॉर लूप, इफ लूप, वाइल लूप होता है ना? यस सर। हाँ, तो सी, तो जनरली क्या होता है मैटलैब में, तुम सी प्रोग्रामिंग के तरह भी तुम कोडिंग कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि मेरा एक वर्क है, ये मैं खुद का एक पर्सनल रिसर्च वर्क है, और ये वाला तो सॉरी, एक मिनट, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सिंस यू हैव नॉट डन दिस थिंग, सो जस्ट आई एम शोइंग यू। ये देखो, मेरा एक रिसर्च का काम है, तो ये देखो मैंने वाइल लूप दिया है, फॉर लूप लगाया है। ठीक है, एक प्रोग्राम देखो कितना बड़ा प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग करने के काम भी आता है। ठीक है, तुम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। तो ये होता है कोडिंग, दिस इज कॉल्ड कोडिंग। और दूसरा होता है सिमुलेशन। सिमुलेशन तो मैंने दिखा नहीं। सिमुलेशन में क्या होता है? सिमुलेशन में तुमको कमांड में सिमुलेशन किए हो, सुने हो पहले मैटलैब में कैसा होता है पता है? सर वी लैब में किए। वी लैब में किया? अच्छा, मैटलैब में नहीं किए? मैं वर्चुअल लैब के बारे में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ मैटलैब में सिमुलिंक मॉडल ये वाला पहले इस्तेमाल किए हो? नहीं किए ना ये वाला? नो सर। ओके, तो सिमुलिंक मॉडल जो होता है ना, वो होता है ये वाला चीज, जो मतलब के सिमुलिंक। तो कोडिंग से अलग होता है। कैसा अलग होता है तुमको भी पता चल जाएगा। ये थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए थोड़ा एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है। हाँ, ये मेरा मैटलैब भी थोड़ा ये हो गया, रेजोल्यूशन में कम पड़ गया। ठीक है, तो एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो स्टार्टिंग सिमुलिंक, फॉन्ट छोटा हो गया। सिमुलिंक ओपन करने से मेरा फॉन्ट छोटा हो जाता है, क्योंकि वो फुल एचडी में चला जाता है। एक मिनट, अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ, सिमुलिंक में क्या होता है, तुम सर्किट बना सकते हो और सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। वेरी इजी होता है, वो हार्ड भी होता है। ये मतलब कि बहुत सारा मतलब कि कमांड होता है इसमें भी। तो एक लाइब्रेरी होता है। ठीक है, तुमको मैं एक शॉर्टकट दिखाता हूँ यहाँ पर। ये ट्रांसफर फंक्शन में नहीं है, ये वो एक्सपेरिमेंट में नहीं है, जस्ट तुम लोग जानने की कोशिश कर रहे हो, नहीं जानते इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर कहाँ गया
सिमलिंक यहाँ पर ढूंढना पड़ता है, ठीक है। हाँ, सिम स्पेस है, सिम पावर सिस्टम्स है, ठीक है। फिर अगर तुम डायरेक्टली यहाँ पर ढूंढना चाहते हो तो ये इसको एंटर करके यहाँ पर लिख सकते हो। मान लो कि मैं लिख रहा हूँ बैटरी, ठीक है, और वोल्टेज, ये देखो वोल्टेज सोर्स दिखाएगा तुमको, ठीक है, डीसी वोल्टेज सोर्स। इसको ड्रैग करके हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, ला सकते हैं इसको। हाँ, इसको जूम करना पड़ता है। तो ये बैटरी है, ठीक है, ये एक बैटरी है। फिर यहाँ पर और एक चीज हम लोग ले सकते हैं, मान लो कि रेजिस्टेंस, ठीक है। और मान लो कि आरएलसी सर्किट ले सकते हो, आरएलसी में भी रेजिस्टेंस होता है, सीरीज ब्रांच, इसको ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आरएलसी में सिर्फ आर ले सकते हो, ऐसा आर ले लिया, मान लो कि इसे 100 ओम्स हो गया, 10 ओम्स हो गया, मेजरमेंट कर लिया ऐसा, रेजिस्टेंस, ठीक है, वोल्टेज। फिर यहाँ पर एक मेजरमेंट डालेंगे। ये मैं जस्ट एक सिंपल दिखा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट कहाँ गया, करंट मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट। फिर एक होता है स्कोप। अच्छा नहीं, करंट मेजरमेंट स्कोप नहीं, वो क्या होता है, वो मीटर, डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले। डिस्प्ले, स्कोप के मदद से तुम लोग वो ग्राफ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्प्ले लूंगा तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट करके ऐसे कनेक्ट कर दिए तो क्या हुआ, एक सिंपल वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है और एक एमीटर है, ठीक है। इसका 100 वोल्ट है मान लो, ठीक है। अच्छा, इसको सेव करेंगे, डेस्कटॉप में सब करते हैं, ठीक है। इसको रन करेंगे। ओह अच्छा, पावर को ही देना है, 1 मिनट। ये देखो वोल्टेज कितना था 100, रेजिस्टेंस कितना था 10, करंट कितना है 10। इसको अगर हम 50 कर देंगे तो करंट कितना दिखाएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो ऐसे तुम सर्किट बना सकते हो। यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, जनरेटर, ऑल्टरनेटर, बहुत कुछ होता है, ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन में तुम अगर वो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन आएगा ना, उसमें करना पड़ता है ये सब। ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है, 3 फेज ट्रांसफार्मर, फिर ऑल्टरनेटर, सबका होता है। कंप्लीट स्ट्रक्चर सर्किट बना सकते हो। मान लो कि कोई, अब क्या होता है कि मान लो कि कोई डिजाइन बना रहा है, कोई मशीन बना रहा है, तो मशीन कैसे काम करेगा, ठीक है। तो वो एक्चुअल मशीन को डिजाइन करने से पहले मैटलैब में कर सकते हैं, फिर और भी पावर वॉल में कर सकता है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर कर सकता है, तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। दिस एप्लीकेशन ऑफ मैटलैब, आई एम जस्ट शोइंग यू बिकॉज सिंस यू आर वेरी मच न्यू टू मैटलैब।
इसको क्लोज कर दिया क्योंकि ये फॉन्ट छोटा हो गया, फिर से हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये होता है सिमुलिंग। तो सिमुलिंग तुम देख लिए तुम लोगों। तो हम लोग अभी कोडिंग में ज़्यादा कंसिडर करेंगे क्योंकि मतलब ये जो है कोडिंग से हो जाएगा, तो इसलिए कोडिंग वाला हिस्सा हम करेंगे। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया सबको? पहला वाला जो एग्जांपल था, पोल जीरो कैसे निकालना है। ओके, अभी उल्टा करेंगे। मान लो कि राइट अ मैटलैब कोड टू ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम इट्स पोल जीरोस एंड गेन वैल्यू। मतलब कि गेन पोल जीरो दिया गया है, अब ट्रांसफर फंक्शन को निकालना है उल्टा। मतलब पहले क्या किया था, ट्रांसफर फंक्शन से पोल जीरो गेन निकालना था, अब पोल जीरो गेन दिया गया उसके ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। okay? तो इसके लिए हम लोग ये वाला प्रोग्राम कोड कैंसिल कर देंगे अभी। ठीक है, तो P मतलब के पोल, हाँ, एज्यूम द पोल लोकेशंस -2 1 0 at -1 एंड गेन 7। तो दो पोल है, मतलब के ऑर्डर है 2, एक -2 है एक 1 है। जीरो जो है वो एक ही जीरो है -1 और गेन है 7। ठीक है, तो इसलिए तीन वेरिएबल लेंगे। एक वेरिएबल का नाम लेंगे P, जिसमें एरे हम सेव करेंगे -2 1। ठीक है, जैसे कि यहां पर किया था, नाम 10 किया था। Z करेंगे हम लोग -1, देखिए इसको ब्रैकेट में डालना है क्योंकि एरे के हिसाब से सेव करना है इसको। ठीक है, और 7 को नॉर्मल 7 लिख सकते हैं हम लोग। फिर नाम 10 करेंगे, फिर इस यहां पर करना है ये वाला फंक्शन ZP2 ट्रांसफर फंक्शन। पहले वाला देखो, पहले वाला इस पे तुम कॉन्सेंट्रेट करो। पहले वाला एग्जांपल में आप वापस लौट जाओ। यहां पर क्या था, TF2ZP, मतलब के ट्रांसफर फंक्शन टू जीरो पोल। अब ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन कोई वेरिएबल नहीं है, ये फंक्शन इनबिल्ट मैटलैब के अंदर सेव किया गया है बाय द मैन्युफैक्चरर। इसका नाम है ZP2TF, मतलब जीरो पोल्स टू ट्रांसफर फंक्शन। मतलब मैटलैब को ये समझाना है कि मेरे पास जीरो पोल्स है, तुमको जीरो पोल्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम ट्रांसफर फंक्शन को निकालो वहां से। पहले क्या था, पहले बोला गया था ट्रांसफर फंक्शन तुमको दे दिया है तो पोल जीरो निकाल के दो। दूसरे वाला में ट्रांसफर फंक्शन को तुमको निकालना है, तुम पोल जीरो लेके ट्रांसफर फंक्शन को निकालो। तो ये ऑपोजिट है। तो यहां पर देखो, हेल्प अगर लिखेंगे हम लोग तो ये आता है पोल जीरो टू ट्रांसफर फंक्शन कन्वर्शन। ठीक है, तो यहां पर लिखना है नाम 10 इक्वल्स टू ZP2TF, फिर तीन वेरिएबल। कौन सा तीन वेरिएबल, जैसे कि यहां पर लिखा था हेल्प TF2ZP, उल्टा है उसका। जैसे उल्टा है, यहां पर क्या था, ZPK से नाम 10 से ZPK निकालना था, आज ZPK से नाम 10 निकालना है। तो मैटलैब को बोल रहे हैं कि ZPK हमारे पास है, तुम नाम और 10 को सेव करो। तो वो दो वेरिएबल में सेव करेगा, नाम और 10। फिर तुमको वापस वो TF फंक्शन डाल के नाम और 10 से तुमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना। तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन नहीं निकाल सकता। प्रोग्राम कोड में लिखा गया है कि ZP2TF, लेकिन वो सिर्फ नाम और 10 करेगा क्योंकि यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि यूजर को इच्छा है कि ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते या फिर सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में निकाल सकते। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम लोग को मिल गया, फिर ऑटोमेटिकली हम लोग दूसरे कमेंट से ट्रांसफर फंक्शन को निकाल सकते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट दिस कोड। अच्छा, ये वाला चीज हम लोग देखना नहीं चाहते, सिर्फ लास्ट दो लाइन हम देखेंगे। अच्छा, यहां पर -1 के लिए लिखा है कि ब्रैकेट जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही वेरिएबल है, तो हम लोग ब्रैकेट नहीं देंगे। दो वेरिएबल के लिए ब्रैकेट देना पड़ता है क्योंकि एरे के हिसाब से सेव होता है। तो इसको एग्जीक्यूट कर लिया, ऐड टू पाथ करना पड़ता है। ठीक है, फिर देखो नम न्यूमरेटर हो गया 7 7, मतलब के वो ऑटोमेटिकली पोल और जीरो को निकाल के फिर न्यूमरेटर में घुसा दिया इसको। तुमको अगर दिया गया तो तुम हाथ में भी कर सकते हो ये वाला चीज। You can also do this in your hand also, hand calculation, very easy, because मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि तुम
प्रैक्टिकल में भी मैटलैब के जरिए से कर सकते, कैसे करते हैं वो तो देख लिया, और हाथ में कैसे करते हैं वो भी देखना चाहिए। कि दो पोल है -2 -1, दो पोल है तुम्हारे पास, सॉरी +1, 0 है -1, तो फिर मतलब 0 है -1 मतलब के ये 0 है, पोल है, और दूसरा पोल है, तो ट्रांसफर फंक्शन होगा s+1 देन s+2 s-1, तो हो गया s+1 s² -2s -2, ठीक है। गेन है 7, तो मतलब ये 7 ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7s + 7 बाई s² -2s -1, ओके। s² -s -2, एक सेकंड मतलब शायद गलती किया है, हाँ सॉरी s -2, यस -2, ओ हाँ क्योंकि ये 2s है, हाँ एक्चुअली यस, इट विल बी -2, यस। सो s² -2 -s -2, s² -s -2, ओके, माइनस सॉरी प्लस होगा ये, हाँ ये प्लस होगा, s² +s -2, ओके। सो दिस इज द वे टू डू दिस, ओके। अच्छा, तो थर्ड वाला मैं दिखाता हूं अभी, ऑब्टेन स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। अच्छा, अभी पोल्स और ट्रांसफर फंक्शन समझ में आ गया ना, पोल जीरो ट्रांसफर फंक्शन कैसे इंटरचेंजेबली निकालना है वो समझ में आ गया सबको। दो एग्जांपल से, ये सुन नो, have you understood that how to calculate poles and zeros from transfer function and vice versa? हेलो, मुझे शायद सुनाई नहीं दे रहा है, और मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। ओके ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग तीसरे प्रॉब्लम में आ रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी सेकेंड ऑर्डर में घुसे नहीं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर का एक प्रॉब्लम देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, ऑब्टेन द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ यूनिटी फीडबैक, ओके। अब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को हम डालेंगे। अब तक क्या किया था, अब तक हमने सिर्फ पोल्स और जीरोस को निकाला था, ठीक है, क्योंकि जीएस जो है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, जीएस एक सिंपल ब्लॉक है, ओपन लूप। अब क्लोज लूप में क्या होता है, क्लोज लूप में एक फीडबैक होता है, एच एस होता है, ठीक है, फीडबैक के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। तो तब कैसे हम लोग एक ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? तो स्टेप रेस्पॉन्स तो ठीक है, लेकिन मैं शायद एक ट्रांसफर फंक्शन को तुमको दिखा दूँ तो फिर एक सुविधा होगा। तो मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 2 और 3 के पहले 2.5 एग्जांपल, सपोज एग्जांपल नंबर 2.5। मान लो कि ये ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास, पहले वाला ऐसा, ये तो थोड़ा बड़ा है। अच्छा, जीएस एक ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, जीएस मतलब कि जीएस एक ट्रांसफर फंक्शन है, जीएस जिसका वैल्यू है 1/s+4 हो सकता है। इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी दैट जी कैनॉट बी ए ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन, जी भी एक ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है फ्रैक्शन का। मान लो कि हम लोग लिख रहे हैं ऐसे 1/s+4, ठीक है, और फीडबैक जो है, फीडबैक है 1/s+2। तो ये ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ये CS, ये RS और ये नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, ये ES। तो ये GS है फॉरवर्ड पर ट्रांसफर फंक्शन, ये है फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन।
तो हम लोग मैटलैब में ये ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन सी एस बाय आर एस को हम लोग निकालेंगे यूजिंग मैटलैब। ठीक है, तो कैसे करेंगे? वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन अ ट्रांसफर फंक्शन ऐसा 1/s+4। इसके लिए हम लोग एक कोड लिखेंगे ऐसा कि मैटलैब को बोलेंगे कि मेरा एक ट्रांसफर फंक्शन है जी, तुम ट्रांसफर फंक्शन ओपीलूप ट्रांसफर फंक्शन तुम बना के दे दो, जी तुम बना के दे दो मुझे, तो जी बना के दे देगा। इसमें क्या आएगा कि एक जी ट्रांसफर फंक्शन आ गया। ठीक है, वो हमको एच एक ट्रांसफर फंक्शन चाहिए एच, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको num1 लिखेंगे, den1 लिखेंगे, num1 den1। ठीक है, अब करेंगे num2 den2, दूसरा वेरिएबल देंगे num2 den2। इसका क्या ट्रांसफर फंक्शन है? 1/s+2 है, तो यहां पर लिखेंगे 2। अब ये यहां पर लिखेंगे हम लोग ये ऐसा ही सेम लाइन लिखेंगे यहाँ पे हम लोग इस वेरिएबल का नाम देंगे जी में एच यहाँ पर लिखेंगे num2 den2। तब इसको एग्जीक्यूट करने से क्या आएगा? दो ट्रांसफर फंक्शन आएगा, एक जी एक एच, जैसे आ गया जी और एच। अभी इसमें हम लोग एक ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन को निकालना है, तो ये देंगे फीडबैक। फीडबैक एक फंक्शन है, जैसे TFF फंक्शन है। ये भी देख लेते हैं फीडबैक क्या है। हेल्प फीडबैक, फीडबैक जो है फीडबैक कनेक्शन टू द इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो मतलब कि पूरा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकाल के तुमको दे देगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल के तुमको दे देगा। तो हम लोग ये वाला कमांड लिखेंगे टी, मतलब के ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जी एच। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले था जी, फिर था एच, अब ये जो है वो पूरा का पूरा ये वाला ट्रांसफर फंक्शन है CS/RS। इसको दोनों को निकाल के वो वाला इक्वेशन, ये जो होता है ना GS/1 + GSHS, तो GS/1 + GSHS को कैलकुलेट करके फिर तुम ये हमको दिखा रहा है। तो उसका क्या कोड है? कोड है ये वाला फीडबैक ब्रैकेट में जी मतलब के फॉरवर्ड पाथ और फीडबैक। मान लो कि हम लोग एक ट्रांसफर फंक्शन है जिसका फीडबैक 1 है, जो फीडबैक है वो यूनिटी फीडबैक है, 1 है फीडबैक। तुमको अगर याद होगा कि यूनिटी फीडबैक को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस 1, दैट मीन्स इफ नथिंग इज गिवन दैट मीन्स HS is 1। okay, fine, suppose I don't want to delete this line, I don't want to delete these 2 lines because I may require them later। मैं डिलीट करके वापस चेंज नहीं करना चाहता। तो मुझे वापस क्या है कि मैं इसको डिलीट करके फीडबैक को 1 लिखूंगा, ठीक है, फिर वापस इसको राइट करूंगा। नहीं, मैं क्या करूंगा, इसको मैं हाइड करूंगा कमेंट। ये परसेंटेज सिंबल इसको ऐसे करने से चला जाता है, क्रॉस करने से चला जाता है और वापस करने से कमेंट हो जाता है। मतलब कि मैटलैब को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कुछ कोड लिखा है, लेकिन यूजर को पता है। जब चाहे तुम कमेंट कर सकते हो, जब चाहे इसको अनकमेंट करके फिर वापस प्रोग्राम में घुसा सकते हो। ठीक है, तो तुमको ये कोड नहीं लिखना है, तुम इस यहाँ पर फीडबैक को 1 लिखोगे तो 1 लिख सकते हो यहाँ पर। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि h = 1, then you can write over here h, anything, but that is unnecessary, that is why we don't write in that way, we write only 1। फिर देखो ट्रांसफर फंक्शन जो है वो यहाँ पर इसको सॉल्व करो। यहाँ पर अगर a 1 होता तो क्या होता, GS/1 + GSHS, HS है 1 तो GS/1 + GS, तो GS/1 + GS मतलब S+5, फीडबैक 1 है। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी, इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। ओके, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ये वाला, तो ठीक है, मैं एग्जाम्पल 3 तक ही दिखाता हूँ क्योंकि बाकी का एग्जाम्पल हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 और 4
सेकेंड ऑर्डर अभी आज डिस्कस नहीं करते, ठीक है। अच्छा, ऑब्टेन दी स्टेप रेस्पॉन्स, यहां पर क्या करें हम लोग, स्टेप रेस्पॉन्स मतलब ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालना है, क्लोज लूप का वो भी तुम लोग सीख गए आज। ओपन लूप को कैसे निकालते हैं वो तो देख ही लिया एग्जाम्पल 1 और 2 से, पोस्ट जीरो निकालते हैं कैसे। फिर क्लोज लूप को कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया। अब देखना है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन तुम लोगों ने निकाल दिया है, और निकालने के बाद ये ट्रांसफर फंक्शन जो तुमको मिला है वो है ये वाला 1/s+5, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि यूनिटी फीडबैक। तो क्वेश्चन में ये है कि ऑब्टेन अ स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैविंग द फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन GS इक्वल्स टू 1/s+4। मतलब कि एक सिस्टम है जिसका फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन है GS इक्वल्स टू 1/s+4, फीडबैक है 1, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आएगा 1/s+5। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में टाइम रेस्पॉन्स देखना है, ताकि टाइम रेस्पॉन्स में हम लोग सिग्नल जो इनपुट दे रहा है वो है स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप। जैसे 4 सिग्नल होता है ना, एक रैंप, यूनिट स्टेप, पैराबोलिक, इम्पल्स। ओके, तो रैंप, स्टेप, इम्पल्स, देन पैराबोलिक। सो वी विल गिव अ स्टेप इनपुट, देन वी विल सी द टाइम रेस्पॉन्स। तो पहला जो 4 लाइन है तुम लोगों को ये तो समझ में आ गया, ठीक है। पहला जो 4 लाइन, इसमें से क्या करेंगे, ये एग्जीक्यूट करने से तुमको ये ट्रांसफर फंक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, ये देखने को मिलता है। अभी इसका स्टेप इनपुट देके हम लोग टाइम रेस्पॉन्स देखेंगे। तो इसका फंक्शन बहुत ही सिंपल है, द फंक्शन इज ओनली स्टेप comma t. What is step actually? Step is, let us see what is step. Step is a function. It is step response of dynamic system. Step response of dynamic system. So what we can do, if you want to plot it, so we will write in this way, step comma t. It is showing busy over here because it is executing. You can see it is showing the step response. So first order system का step response तुम लोगों को पता है, ऐसे ही होता है। तो ये step response दिखा है। देखो ये 0.2 तक गया, मतलब कि इनपुट है 1, लेकिन ये गया है 0.2 तक, मतलब कि there is a huge margin. That means if the input is 1, then it has only reached 0.2. Okay, there is so much error, so much error. Okay, so that we can see. अच्छा, यहाँ पर देखो एक मैंने लाइन, यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने, यहाँ पर वेरिएबल मैंने नहीं दिया, ये वाला मैंने मिटा दिया था ना। इसका मतलब कुछ नहीं, ये कोई प्रोग्राम में चेंज नहीं करता। ये जो स्टेप तुमने देखा वो लाल कलर का हो जाएगा और कुछ नहीं। देखो लाल हो गया, R मतलब रेड, B मतलब ब्लू, और कुछ नहीं दिया तो वो डिफॉल्ट ब्लू दिखाएगा, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे ऐसा ये वाला डाल के तुम देख सकते हो कि स्टेप इनपुट में कौन से टाइम में कौन सा एम्पलीट्यूड है। अब देखो इसमें वैल्यू है 0.2, कंटिन्यू चल रहा है, या वो स्टेडी स्टेट हो गया, इसलिए उसके ज्यादा 1.8 से ज्यादा नहीं दिखा रहा है। इसको थोड़ी चेंज कर सकते हैं हम लोग, चेंज करके इसको 5 डालते हैं। 5 डालने के बाद देखते क्या आता है, और भी कम हो गया। ठीक है, अच्छा इसको 2 डालते हैं, ठीक है। 2 डालने से 1/s+3 आ गया, तो थोड़ा सा इंक्रीज किया है, ठीक है। ऐसा हम लोग
1 डाल सकते, 0.5 आ गया। और इसको सिर्फ तो 1 डालने से क्या आ रहा है ट्रांसफर फंक्शन 1/s+2। सपोज आई वांट टू राइट ओनली डिनोमिनेटर एज 1, तो फिर ट्रांसफर फंक्शन है 0.5। स्टैटिक गेन, तो ये गेन हो गया, ठीक है, ये एक कांस्टेंट नंबर हो गया स्टैटिक गेन, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर न्यूमरेटर को तुम बढ़ाना चाहते हो तो मान लो कि 2 कर दिया इसको, ठीक है, तो थोड़ा इंक्रीज किया है गेन, तो गेन को बढ़ाने से तुमको देखो 0.7 के आसपास चला गया ये। और इसको अगर न्यूमरेटर को हम 4 करते हैं, देखो 0.8 हो गया, तो इसको हम 10 करेंगे अगर 0.9, तो इसको अगर 20 करेंगे, ओके, a little bit more than 0.9, so if you put 100, it is almost 1, ठीक है, it is almost 1. So in this way you can change and you can get the output accordingly. ये था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब इसको दूसरे वाला में अगर इम्पल्स डालना है, इम्पल्स, ठीक है, यहाँ पर s+9 है तो मैं s+4 के हिसाब से दिखा रहा हूँ, पहले वाला सब इसको सिर्फ इम्पल्स कर देते हैं। इम्पल्स अगर इनपुट है तो वो कैसे दिखाएगा, इम्पल्स है तो सिग्नल ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज, ठीक है। ये है सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सेकंड ऑर्डर सिस्टम तो भी दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 2 बाकी है तो वेरी इजी है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम में क्या होता है, डिनोमिनेटर में देखो s² + s+4, तो यहाँ पर भी तुमने देखा है कि ये बड़ा सिस्टम होता है तो वो कॉन्वोल्यूशन करके लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो बड़ा सिस्टम जो होता है तो मतलब डिनोमिनेटर में, एक सेकंड, डिनोमिनेटर में अच्छा और भी है यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2, ओके। So I am not going to type 1, I will continue in the next class. I am just showing you this 5 and 6 only, okay, 5 and 6. So step response, तो मान लो स्टेप रेस्पॉन्स दे रहे हैं हम लोग यूनिटी फीडबैक से, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है सेकंड ऑर्डर, मतलब कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम फॉरवर्ड पाथ दिया गया है 1/s² + s+4। सो द न्यूमरेटर वैल्यू इज 1 एंड डिनोमिनेटर एरे विल बी 1 1 4, द कोएफिशिएंट्स आर 1 1 4। तो हम लोग इसको यहां पर लिखेंगे स्टेप, ओके, इसको हम बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, पहले ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो जी आ गया ऐसा, और ये है तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन। अब इसको ओपन करते हैं, ये देखो सेकंड ऑर्डर सिस्टम, इसका पीक एक ओवरशूट है, पीक ओवरशूट कितना है वो भी पता चल जाएगा, उसका भी कोड होता है, फंक्शन होता है। ऑलमोस्ट इट इज 0.297, टाइम भी पता चल गया, पीक टाइम। फिर ऐसा करके सेटलिंग टाइम आ जाएगा, राइज टाइम मिल जाएगा 50% जो है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप दिया गया था। अभी इसको अगर हम लोग इम्पल्स देते हैं, इम्पल्स, तो फिर स्ट्रक्चर सेकेंड ऑर्डर में उतना चेंज नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। इम्पल्स दिया गया था कि स्टार्टिंग से ऐसा गया, मतलब कि 0 से शुरू नहीं हुआ है, ये नीचे से शुरू नहीं हुआ, 0 से शुरू हुआ है, फिर डैम्पिंग हो रहा है, ठीक है। अब टाइप 1 टाइप 2 कर सकते हैं, वहां पर एस को बैठा सकते हैं, यहाँ पर एक एस बैठा दिया,
एस बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 0 लिखना पड़ेगा कि 0 1 1 4, क्योंकि कोएफिशिएंट जो है मान लो कि ये वाला यहाँ पर हम लोग एक एस सामने लिख रहे हैं टाइप 1, ओके, क्योंकि ये है टाइप 0 है, h टू द पावर 0 0 है, ठीक है। यहाँ पर एक टाइप 1 है, तो टाइप 1 में तुम लोग बोलोगे कि टाइप 1 अगर है तो 0 क्यों लिख रहे हैं? 0 लिख रहे हैं इसलिए अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो फिर क्या करना चाहिए तो एस एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1 वो भी लिख सकते हो, प्लस 4s आएगा, फिर 0 पीछे लिखना ही है, तो आगे लिख सकते हो। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थोड़ा ज़रूरी है ये वाला। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क। हैव यू अंडरस्टूड whatever experiments, whatever examples I've shown you? Any doubt? No, sir. ठीक है, मैं फिर ये वाला चीज़ मैटलैब अगर किसी के पास हो तो ये प्रैक्टिस करो, ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर मैटलैब कलेक्ट करो, कॉलेज से भी कर सकते हो, मेरे साथ मेरे से ले सकते हो तुम लोग। और अभी फ़िलहाल ये तो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, फिर वहाँ से तुम देख सकते हो फॉर योर रेफरेंस। ओके, सो देन थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे देन। Thank you, sir. ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।